ठीक है, सब लोग ज्वाइन हो गए। तो आज का सेशन जैसे आपको आपने एडवर्टाइज देख के ज्वाइन कर लिया है। मेरे ख्याल से आप सभी लोग इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड है। एक्चुअल में ये इंटर्नशिप क्या हो रहा है, इंटर्नशिप में हम क्या करने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं, कंसेप्ट क्या है, ऑनलाइन इंटर्नशिप है तो ये सभी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। वो क्वेश्चंस आज मैं आंसर करने के लिए आपके सामने हूँ। आज अपना एम एक ही है कि आपको एक्सपीरियंस कैसे मिल जाए। क्योंकि क्या रहता है कि हम किसी भी कोर्स के लिए ज्वाइन करते हैं तो हमेशा हमें ये पूछा जाता है कि मतलब आप पूछते हैं कि सर हमें इसमें से क्या क्या मिलने वाला है, सर इसका फीस क्या रहने वाला है, सर इसका कंटेंट क्या रहने वाला है, इसके बाद सर कुछ प्लेसमेंट्स वगैरह है क्या, ड्यूरेशन है क्या, सर फैकल्टी कौन सा है। तो ये सभी चीजें आज हम इस सेशन में देखेंगे कि आपके पूरे जो डाउट्स है। मैं पहले मेरा प्रेजेंटेशन ये कर लेता हूँ, बाद में आपके जो भी डाउट्स रहेंगे हम वो उसको आंसर कर देंगे। तब तक आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ना, आप खाली मुझे चैट बॉक्स में मेंशन करके रख दीजिए, चैट बॉक्स में वो ले लूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। आज तो अपना एक हमने सेशन जो रखा हुआ है उसका जो इंटर्नशिप करने के लिए है। तो आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं वो 3D व्यू है, वो प्रोजेक्ट का जिसका हम इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो मैं उसका आपको कंपनी जो है, जो करण बिल्डर्स के साथ मिलके हम ये इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो कंपनी के बारे में भी जानते हैं हम लोग। तो मैं एक थोड़ा सा छोटा सा वीडियो प्ले कर लेता हूँ, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ठीक है, Commitment, innovation, and working excellence are the binding pillars of this establishment. This is the journey of Karan Builders. Mentored, nurtured, and empowered by a dynamic individual, Mr. Pramod Suryavanshi, create with heart and build with mind has always been a working philosophy for Karan Builders. In the year 1987, in the Narayangaon district of Pune, Mr. Suryavanshi founded an establishment by the name of Surya Constructions. The company started to work in the PWD sector along with irrigation and development projects. Through the years, the company engineered its growth and adapted to the pulse of construction and infrastructural development in the company also did notable work on industrial projects with local companies like Sartex and Bal, Infosys in Hinjawadi, the Radisson Hotel in Kharali, the Man School in Hinjawadi. A defining moment in Mr. Suryavanshi's life occurred when he was called on to work for the Infosys Super Specialty Hospitals at Sassoon, Asia's first integrated test track for construction equipments was constructed by Karan Builders for JCB India. The valuable workforce at Karan Builders dispenses absolute service excellence and resonates with innovation, safety, and quality. We are now a well-known name in the construction industry and well on our way to establish as a brand name in the industry. In Karan Builders, we work as a family. Our key to success is our professionalism, and it's highly appreciated by our clients. The team secures the procurement of quality material to keep pace with progressive schedules. This
highly productive workforce undertakes detailed micro and macro planning of the company projects, right from the date of inception till the date of the project handover. I found few people who are really admirable, not according to the quality, not according to the longevity, not according to the promises, but all the qualities what I found in Mr. Suryavanshi is greatest and greatest. Tracing itself through a legacy of more than 25 fantastic working years with a bright future in store. The possibilities are indeed endless. ठीक है, तो आपको कंपनी के बारे में भी पता चल गया है, करण बिल्डर क्या है। तो एक अच्छी कंपनी हमने इस ये इंटर्नशिप के लिए चुनी हुई है। मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब हम पूरी सभी जो चीज़ें हैं वो एक बार देख ले कि क्या-क्या हम कंडक्ट करने वाले हैं इसमें। तो पहले तो आपका ये कंसर्न रहेगा कि ये इंटर्नशिप है, ये किसके लिए है इंटर्नशिप। तो ये इंटर्नशिप मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग अपना कुछ टाइम गंवाए बिना कुछ अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट में करियर करना चाहते हैं, तुरंत एक कुछ मैनेजमेंट लेवल पे जाना चाहते हैं, कॉलेज करते-करते भी जिनको एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, क्योंकि मैंने कल के सेशन में भी एक बात कही थी। नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई हुई है, उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि 6th स्टैंडर्ड से ही कोडिंग वगैरह सभी स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए स्टार्ट कर दिया है। अगर टेक्नोलॉजी इतना आगे जा रहा है, अपनी एजुकेशन, इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज हो रही है, 6 स्टैंडर्ड से कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो और मैं कुछ एडवर्टाइज भी देखी कि जो अभी मेरे पास है, तो मैं आपको सेशन खत्म होने के बाद दिखा देता हूँ। मतलब छोटे 6 स्टैंडर्ड के बच्चे भी गेमिंग वगैरह ये चीज़ें कर रहे हैं। तो हमें ऐसे क्यों नहीं सोचना चाहिए कि हम कॉलेज के फर्स्ट डे से ही, जब भी हम फर्स्ट ईयर को जाते हैं, तब से ही क्यों ना हम ये ऐसे एक्सपीरियंस गेन करना चालू कर दें। तो ये एक्सपीरियंस कैसे गेन करना चाहते हैं, तो ये कुछ टिपिकल जो इंटर्नशिप्स रहती है, मतलब बाहर भी ऑनलाइन इंटर्नशिप्स है, लेकिन वैसे ये इंटर्नशिप नहीं है, क्योंकि किसी एक प्रोजेक्ट ले लिया, 1 महीने के लिए सभी पूरा पैक करके जो उनको समझता है, जो उनके उनके जो एरियाज है, उसके बारे में ही आपको बता दिया और खत्म हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअल प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस जब भी आता है जब आप साइट्स स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे प्रोजेक्ट तक उसके ऊपर काम करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस ऑनलाइन कैसे मिल पाएगा, इसके लिए हमने ये प्रयास किया हुआ है। तो मैं कुछ बोलने से ज़्यादा हमारे कुछ इंटर्न्स हैं, तो वो आपसे कुछ कहना चाहेंगे। मैं उनका उनका टेस्टिमोनियल है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। I am Abhishek Anand, second year civil engineering undergraduate student. I am from Bihar and currently I am pursuing my BTech from Government Engineering College, Sirpura. The main challenge is that in our college days we study different things like RCC and soil and building materials and construction procedure and different things. But only studying these things is not enough. In college, practical is going on, but this is only for instrument, how instrument is used. But in reality, how construction work is going, this is not how. This is considered not only construction work, actually managing, planning the work, everything is down to us. So that's why I choose this live site online interns. I saw an ad about CIT on Facebook. I am confused about the site का कैसे online internship हो सकता है. Then I registered for that webinar and then I attended that webinar for 4 hours approx. And then I came to know that this is really interesting and I should have to join this. It's really very effective for me because they are very related to construction work such as concreting, RCC, documentation, how to plan, how to manage the work, how to manage the people. Everything is down to us in
only one topic. I found every topic is effective and relevant to me. I found some new topics such as formwork and curing of concrete blocks. This CEIT team has a great collection of faculties. Every faculty is mind-blowing, has a great experience in their field. As I said, everyone is gems in their field. As I Saurabh sir and structural career. He is also very knowledgeable and outcomes very well. प्रकाश सर हैं, श्रीरंग पालंदे सर हैं, और मुश्किल परवीन सर हैं, वो हम उससे काफी जुड़े रहते हैं। वो निकेश सर, केदार सर प्लानिंग के लिए हैं। It helps me a lot in our college, in our syllabus. So get to know the problems, challenges, and their solutions, how to solve them. So no doubt, obviously, I think I would definitely like to recommend our friends in this science university. CEIT is not only for students, this is also for professionals, because it helps every engineer to gain the experience and knowledge. This is one of the course where I see every topics, every aspect of civil engineering work down to a civil engineer. First of all, I thank you CEIT that gave me opportunity to say something on Engineers Day, and it is celebrated as a tribute to the greatest Indian engineer, Shri Moksha Kadam Visvesvaraya, and recognize the contribution of engineers in the development of India. The current scenario is not only degree is required. सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके पास relevant knowledge होना चाहिए. Second year में ये सब पढ़ाई नहीं अभी तक पता है सिलेबस में, but मैं इसी को कवर कर रहा हूँ, so that's something great for me. और दूसरों को ऐसे सलाह देने की, एडवाइस देने की बात है, तो यही है कि what we study in college is really far different what we implement in real life. It's very different. So you must try this type of course. थैंक यू अभिषेक। आप लोगों से यही ये है कि देखिए ये इंटर्नशिप अभिषेक ने कुछ इसमें कहा था कि जो कॉलेज में वो सीखते हैं लेकिन एक्चुअल में अलग होते रहता है, लेकिन वो चीज़ नहीं है एक्चुअली। अभिषेक भी अभी सेकेंड ईयर को ही है, तो उसको भी और आगे सीखना है, इसके लिए उसके व्यूज वैसे रहेंगे। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि जो कॉलेज में सिखाया जाता है वही साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। खाली आपको ऐसे कोई गाइडेंस नहीं करता कि ये चीजें आपने सीखी थी और ये ऐसे यहाँ पे अप्लाइड हो गई है। तो ये चीजें सीखने के लिए, और जैसे अभिषेक ने कहा कि आपको सभी चीजें एक ही जगह पे आपको अगर सीखने को मिलेगी तो यहीं पे मिलेगी। क्योंकि देखिए अगर आप बिना किसी सोचे किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाते हो, या आप एक आधा जॉब आपको मिल गया, ऑफर मिल गई और आपने ज्वाइन कर लिया, समझ लीजिए साइट पे ही ज्वाइन कर लिया, जैसे कि अपना ये साइट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटर्नशिप है, तो आपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे ही एक आधा जॉब ढूंढ लिया और वहां पे आप ज्वाइन हो गए। आप बोले कि मैं 2 साल करता हूँ साइट इंटर्नशिप, और मतलब साइट का एक्सपीरियंस लेता हूँ और उसके बाद मैं खुद का चालू कर देता हूँ, या मैं बाद में फिर स्विच करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टिंग में जाना है, मुझे प्लानिंग करना है, बिलिंग करना है, या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना है। लेकिन क्या होता है देखिए, जैसे ही आप स्टार्ट कर देते हो जॉब, तो आपको वहां पे कोई सिखाने वाला नहीं रहता है ये चीजें कैसी होती है। तो आप क्या होते हैं कि जैसे लेबर सिखाता है, जैसे कारपेंटर सिखाता है, जैसे फिटर सिखाता है, जैसे आपका सीनियर सिखाता है, उसके तरह से आप ढलना चालू हो जाते हैं। लेकिन इससे डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि आप का माइंडसेट वही हो जाता है जो आपको दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में चीजें बहुत अलग रहती है, जो आपको सीखने की बहुत जरूरत रहती है। और बाद में आप कौन सा भी आपका डाउट रहने दीजिए, अगर आप पूछने जाते हैं, जैसे कि आपने पूछा कि ये प्लानिंग कैसे किया गया है, ये डेट ऐसे क्यों की गई है, ये क्वांटिटी कैसे निकाली गई है, ये बिलिंग कैसे किया गया है, तो आपको सीनियर आपका जवाब यही देंगे कि एक तो हेड ऑफिस में जो बैठते हैं वो लोग करते हैं। तो फिर हेड ऑफिस में जो लोग करते हैं तो आपको फिर उनसे तो मिलने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आप तो जूनियर हैं। डायरेक्ट आप प्रोजेक्ट मैनेजर से भी इतना खुल के बात नहीं कर सकते। आपको तो रिपोर्टिंग सीनियर इंजीनियर को रहता है, बड़ा साइट रहेगा तो प्रोजेक्ट मैनेजर उनको मिलने का सवाल ही नहीं। और बाकी हेड ऑफिस से जो टीम आती है, और उसके साथ साथ जो कंसल्टेंट भी आते हैं, प्लम्बिंग कंसल्टेंट रहने दीजिए, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट रहने दीजिए, जब चेकिंग को आते हैं तो उनसे भी मिलने का सवाल नहीं रहता। तो आपका क्या हो जाता है कि आपने अगर प्रोजेक्ट एक आधा ज्वाइन कर लिया, तो समझ लीजिए अभी फुटिंग में ही प्रोजेक्ट है, वो फुटिंग में प्रोजेक्ट है, उसको आपने ज्वाइन कर लिया और
1 साल हो गया तो 1 साल में आपका बिल्डिंग का आरसीसी भी फिनिश हो गया। मतलब आपका पूरा एक्सपीरियंस किस में हो गया? आरसीसी में हो गया। उसके साथ-साथ जो कुछ थोड़े बहुत फिनिशिंग के ब्रिक वर्क की वगैरह एक्टिविटी चालू रहेंगी, उसका आपका एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन जब आप 1 साल बाद आप ऐसे बोलेंगे कि नहीं अभी मुझे ये नहीं करना है, मुझे अभी बिलिंग में जाना है या मुझे प्लानिंग में जाना है, तो आपको क्या होगा? आपकी कंपनी क्या बोलेगी? वो केस में अगर कंपनी का कौन-सा दूसरा प्रोजेक्ट रहेगा तो कंपनी बोलेगी अभी नहीं, ये अपना ये दूसरा साइट चालू हो रहा है। नहीं तो कंपनी के पास दूसरा प्रोजेक्ट आ गया तो वो क्या सोचेगी? अरे ये अभिषेक है, इसने तो स्टार्ट से लेके मतलब अभी ये बिल्डिंग का तो स्टार्ट से लेके फिनिशिंग तक मतलब पूरा आरसीसी खत्म होने तक इसने ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है एज अ जूनियर इंजीनियर, डेडिकेटेड बंदा है, तो इसको हम दूसरा अपना जो बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है तो उसके प्रोजेक्ट पे डाल देते हैं। फिनिशिंग के लिए दूसरा आदमी मिल जाएगा जो एक्सपीरियंस है, जो अपने पास है। तो ऐसे क्या होते जाएगा फिर आपका एक्सपीरियंस आरसीसी में ही बढ़ते जाएगा आगे। आपको आगे बढ़ने का चांस नहीं मिलेगा। एक बिल्डिंग खत्म हो गया, दूसरा बिल्डिंग खत्म हुआ, तीसरा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब 3-4 साल हो गए लेकिन मैं खाली आरसीसी ही कर रहा हूँ। मैं कंपनी चेंज कर देता हूँ और भी दूसरे कंपनी में जाता हूँ। दूसरे कंपनी में भी जाओगे तो वहां पे भी आपको ऐसे ही मिलेगा, अरे आपका तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है 4 साल का, 3 साल का आरसीसी में, तो आप हमारा ये प्रोजेक्ट चालू है आरसीसी का तो वो देख लीजिए। तो ऐसे अगर करते रहेंगे तो आपको आपका वो ठप्पा गिर जाएगा कि आप आरसीसी के ही है। और जब भी आप काम को लग जाते हो तो आपको जॉब स्विच करना या एक आधा जॉब मतलब प्रोफाइल चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या है कि आपको पैसे आने चालू हो जाते हैं, फैमिली का ये रहता है, बाद में अपना इंजीनियरिंग हो गया है, अभी जॉब को लग गए तो शादी के चक्कर चालू हो जाते हैं, तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है और उसके बाद आपको शिफ्ट करना, जॉब चेंज करना मुश्किल हो जाता है। और अगर चेंज भी कर लिया तो दूसरा जॉब मिलेगा क्या? अभी तो बहुत अनसर्टेनिटी है। तो वो केस में आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है। अगर ऐसे ही डायरेक्ट आपने कौन सा जॉब ले लिया तो आपको फिर पछताना भी पड़ सकता है, क्योंकि आपने आपकी कॉम्पिटेंसी देखी नहीं, आपका इंटरेस्ट एरिया देखा नहीं, खाली जॉब मिल रहा है इसलिए ज्वाइन कर लिया। लेकिन अभी फिर ये कॉम्पिटेंसी ये बोलेगा क्यों? कौन बोलेगा? देखिए अभी अभी तक आपको मालूम है कि जो भी आपने अभी तक किया, डिग्री किया, डिप्लोमा किया, एमटेक कर रहे हैं या अभी कोई जॉब को है, तो किसी ने ना किसी तो बोला रहता है। फैमिली वाले बोलते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करो, करना है, जॉब वैकेंसी अच्छी रहती है तो आपने सिविल ले लिया क्योंकि वैकेंसी ज्यादा रहती है। बाद में वहां पे कुछ हुआ नहीं इसलिए फिर आपको ऐसा लगा कि चलो हम अभी प्राइवेट जॉब में जाते हैं। तो ये जो गैप गिरता है एग्जाम के प्रिपरेशन का, तो उसमें भी आपने कुछ किया नहीं रहता है, प्लान भी नहीं किया रहता है, तो वो केस में आपको एक्सपीरियंस भी मिलता नहीं और फिर आप तुरंत ज्वाइन करने का रहता है क्योंकि टाइम बहुत गया रहता है। तो वो केस में आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया कौन सिलेक्ट करता है? तो बाकी की जो कंडीशन है वो सिलेक्ट करती है, आपका खुद का कुछ नहीं रहता है वो केस में। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद कोई आपका दोस्त बोलता है कि अरे एमएनसी में जॉब है, कॉलेज में अगर प्लेसमेंट रहेगी तो कॉलेज के प्लेसमेंट में जो ड्राइव की कंपनियां रहेंगी तो आप सोचते हैं चलो प्लेसमेंट आ गई है, चलो प्लेसमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन आप खुद का कुछ नहीं सोचते उस केस में। तो और सोचने के लिए आपको आगे जाके करियर ऑप्शंस क्या-क्या है? मतलब मैं कहता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद 72 के ऊपर करियर ऑप्शंस अवेलेबल है सिविल इंजीनियर के लिए। तो वो कौन-कौन से अवेलेबल है? खाली अभी हम ये प्रोजेक्ट का रियल एस्टेट का ही देखेंगे, तो रियल एस्टेट में बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैं स्लाइड थोड़ा-सा आगे लेके जाता हूँ, मतलब हम आपको ये भी लगेगा। और एक हमारे ताहिर हाजी है, इंटर्न है, तो वो भी क्या कहते हैं एक बार सुन लीजिए। My name is Tahir Shoaib Haji. I am from Dhule district, Maharashtra. I've completed my diploma from Government Polytechnic Dhule, and then in 2016, and then I have completed my graduation in civil engineering from Indian Peace KPT College of Engineering, Nasik. Last year I was prepared for MPSC, and in this year I'm preparing for MPSC as well as GATE simultaneously. I'm currently working with as an intern with current builders. Mostly being a pass out, being a fresher, we can say, I felt the need of doing an internship is quite basic for a civil engineer. It is quite difficult for getting a
salary. I feel that internship should be made compulsory by college, by each and every college, so that the students get better opportunity as they leave the college. Nowadays, industries are mainly focused towards hiring experienced persons. You need to be sound in the technical field. Not only you can go to any other site, you can approach the engineer. You can ask them if there is any job opportunity. You can observe like ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट अपना अपना ही प्रोजेक्ट है, तो इसका 3D भी बनाया हुआ है on site. और pीछे लाइव एक्चुअल साइट का भी आप Your देख रहे हैं। higher authority or even with your with people who work under you. It is an advantage for you when you are actually on a job. If you are an intern, you will be preferred than other people. Actually, I came to know CIT from my friends. One of my friends suggested that there is a course going on that is e-tendering. I got a notification from CIT that they are taking this initiative to start the internship. I thought this could be the most ideal situation for an internship. There are very few people that approach you and they will tell this is how it is, this is how it works. So you just need to observe it and learn by your own self. So I thought this was the best opportunity for me when I was sitting at home. I'm quite interested in how project is on the level of execution. You develop contacts, you get in touch with your engineer or let's say architect. How is the project managed on various organization levels, on various hierarchies. So that is what I feel is the best part. Also, I have been interested in structural design. There are various faculties in this internship that help us guide specifically for structural consulting purposes. Firstly, Praveen sir, Prakash Bhatt sir, Shriram Palade sir. There are various faculties which are quite experienced in the various fields that they teach. Even during the sessions, they are quite interactive. Sometimes they even say that we are learning from you. There are various questions. Sometimes students come, they're quite unique, and even they are forced to question themselves that how do we tackle this situation. It is a great opportunity being a part of this. I was surely recommend many of our friends. They were looking forward to it. थैंक यू ताहिर। एक मैं साइट का गाइडेड टूर भी आपको करवाना चाहूँगा। ये अभी 15 सितंबर को अपना फर्स्ट लैब हो गया था। तो ऐसे हम कुछ साइट के वीडियोस वगैरह डेली हम शूट करते हैं और डेली इवनिंग में ऑनलाइन है तो कैसे करते हैं। तो ऐसे वीडियोस हम डेली शूट करते हैं ड्रोन के साथ, कभी मोबाइल कैमरे के साथ, कभी एक्सपर्ट का हेल्प लेके। और ये वीडियोस हम डेली 7 to 8 PM हम मिलते हैं और उसमें हम डिस्कस करते हैं कि ये साइट का स्टेटस क्या है। तो उसके ऊपर से आपको डीपीआर आपका अपडेट करना रहता है, डेली लेबर रिपोर्ट अपडेट करना रहता है, जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं डेली मॉर्निंग में। डीपीआर डीएलआर रहता है, उसके बाद मटेरियल का रिसिप्ट्स रहती है, वो अपडेट करनी पड़ती है। ये स्लैब का कास्टिंग चल रहा था 15 सितंबर को। एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होके 2 महीने हो गए हैं, तो फर्स्ट लैब है ये। हमने 2 महीने पहले ये इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी। ये एक बिल्डिंग अभी चालू है, दूसरा बिल्डिंग पीछे साइड में है, वो करीबन और 1 महीना लगेगा। जनवरी या फरवरी में स्टार्ट एक्सकवेशन करने वाले हैं उसका। तो ऐसे कुछ ये प्रोजेक्ट के ऊपर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो मैं आगे जाके आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअल आपको फील साइट का फील देने के लिए और साइट की एक्टिविटीज आपको अपडेट करने के लिए साइट के ऊपर प्रोजेक्ट टीम छोड़ के, मतलब एक प्रोजेक्ट मैनेजर, 2 सीनियर इंजीनियर, एक क्वालिटी इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर और सुपरवाइजर्स, ये सभी छोड़ के आपको गाइड करने के लिए डेडिकेटेडली सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी और यूनाइटेड वे ग्रुप की तरफ से करंट बिल्डर का स्टाफ छोड़ के एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जिनका 30+ इयर्स का एक्सपीरियंस है और दूसरे
और जो दूसरे 2 इंजीनियर्स हैं जो आपको क्वांटिटी निकालने में और मतलब प्रोजेक्ट के अपडेट करने में, ये वीडियो शूट करने में हेल्प करते हैं। ऐसे 3 लोगों की टीम साइट के ऊपर है आपको ये दिखाने के लिए डे टू डे, मतलब एक्चुअल आपको फील आना चाहिए। और उसके बाद जो मशीनरी वगैरह यूज़ की गई है, तो उसकी भी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ उसको, आपको तब भी समझ में आ जाएगा ये सभी चीज़ें। अभी किसी ने पूछा है कि 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब के ऊपर कुछ डिस्कशंस, तो ये सभी हम सेशन में करते हैं। सेशन में डे टू डे हम एक एक टॉपिक लेते हैं और जो जो एग्जीक्यूशन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्टेयरकेस रहने दीजिए आपका, जैसे स्लैब का रेनफोर्समेंट में कुछ वीडियोस भी आपको दिखा देता हूँ कैसे रहते हैं। ये संकन पोर्शन है, तो संकन पोर्शन में स्टील कैसे बाइंड किया जाता है। शेयर वॉल ली गई है तो कॉलम क्यों नहीं लिए, कॉलम शेयर वॉल का क्या बेनिफिट रहता है। ये सभी ये स्लोपिंग स्लैब है तो उसके ऐसे स्लोपिंग के टाइम पे स्ट्रक्चरल डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या सोच रहती है उनकी, ये सभी चीजें हम देखते हैं। लिफ्ट वॉल है, फुटिंग अभी तक जो हो गई है अपनी वो स्टेटस हमने ये किया है। ठीक है, अमोल, ये इंटर्नशिप जैसे मैं आगे जाके बोलता हूँ आपको, ये इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड है। तो प्रोजेक्ट 18 मंथ्स का फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट है, स्टार्ट जुलाई से हो गई है इसकी। तो 18 मंथ्स उसका कंप्लीशन है, हैंडओवर पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक। आपको ये इंटर्नशिप का मीनिंग थोड़ा सा बाकी जो लोग हैं उन्होंने गलत कर दिया है कि इंटर्नशिप वो 1 महीने का जो कॉलेज के लिए लगता है, इसलिए 1 महीने का इंटर्नशिप डायरेक्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है। 1 महीना कहीं पे भी ऐसे ऑनलाइन सिखा देते हैं, नहीं तो क्लासरूम में एक साइट के ऊपर सिखा देते हैं, तो वो एक्चुअल एक्सपीरियंस होता नहीं है। एक्चुअल एक्सपीरियंस के लिए आपको क्या चाहिए? एक्चुअल एक्सपीरियंस के लिए आपको वहां पे साइट पे काम करना चाहिए। साइट का प्रोग्रेस जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपको सभी चीजें जाननी चाहिए, तो तभी वो एक्सपीरियंस में काउंट होगा। नहीं तो आप ऐसे कितने भी सर्टिफिकेट जोड़ लीजिए, सर्टिफिकेट का कुछ वैल्यू नहीं है बाहर मार्केट में जाते हो तो। एमएनसी में यूजफुल हो सकता है, फिर भी सर्टिफिकेट देखने के बजाय वो आपको कितना यूजफुल, आपने उसमें से कितना गेन किया, आपका नॉलेज कितना है, आपकी स्किल्स क्या है, वो पहले देखते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट के ऊपर आते हैं। दीपेंद्र जी, यस, दीपेंद्र जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप देखिए, क्योंकि अभिषेक ने सेकंड ईयर को है उस तभी से लिया है, मतलब उसका 3rd ईयर और लास्ट ईयर खत्म होने तक ये एक तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ दूसरा जो प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा तो उस पे उसके ऊपर भी वो इंटर्नशिप कर सकता है। और क्या करना है, खाली डेली 1 घंटा ही देना है, इवनिंग 7 to 8 PM। और ये सभी चीजें, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ये जो रोप बांधा है वो उसका मीनिंग क्या रहता है, वो क्यों बांधा है, ये अप्लाई कैसे ये करते हैं, ये इतना डेप्थ क्यों कैसे लिया है, ये कैसे फाइनलाइज करते हैं, इसके लेवल कैसे लेते हैं, ये पट्टी जो रहता है ये कितने स्पेसिंग के ऊपर डाला रहता है, ये प्लाई का ओरिएंटेशन कैसे रहना चाहिए, इसके ग्रेन्स कैसे रहते हैं, तो उसके हिसाब से उसका ओरिएंटेशन कैसे रखना चाहिए। ये जो शटरिंग मेकिंग करते हैं, अभी ये वर्टिकल है तो उसको वर्टिकल क्रॉस कट करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कट करना चाहिए। बहुत सारी चीजें रहती है जो आपको स्पेशल, आप साइट पे जाओगे तो एक आदमी ये कोई चीजें बता नहीं पाएगा, आपको ये सभी बताने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत रहती है। और एक्चुअल में आप इंटर्नशिप करने को जाओगे तो आपको ये एक्सपीरियंस एक ही साइट पे ऊपर कोई देने वाला नहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके भी लिमिटेशंस रहती है, उसकी भी कुछ एक्सपर्टीज रहती है। तो इसलिए हमने साइट की भी टीम अलग रखी हुई है अपनी साइट की, और यहाँ पे जो आपको गाइड करते हैं वो टीम भी अलग है जो एक्सपर्ट लेवल की है। मैं आपको टीम से भी मिलवा देता हूँ। ठीक है, ऐसे ये प्रोग्रेस हम डे टू डे अपडेट ये करते हैं। उसके बाद जैसे अभी मैंने कहा, ये तो पोर्शन की कौन कौन कर सकता है, जिनको मैनेजर बनना है, जो सोचते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पीजी वगैरह भी करना है और मुझे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में करियर करना है, निकमार करना भी रहने दो, कोई भी रहने दीजिए, तो क्या करना चाहिए कि साथ में आपको साइट का एक्सपीरियंस कोई भी मांगेगा कि, क्योंकि अपना ओरिजिन साइट से ही है, सभी डिपार्टमेंट्स काम करेंगे क्योंकि साइट चल रहा है इसलिए। तो वो एक्सपीरियंस आपको, वो कैसे एक्टिविटी चलती है वो आपको मालूम होनी चाहिए, प्लानिंग भी करने रहने दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट निकालने रहने दीजिए। तो एज अ मैनेजर ऑफिस में बैठ के आपको कैसे काम करना है, वो कैसे काम करता है विदाउट साइट पे जाए हुए, उसके जो रिपोर्ट्स आते हैं वो एनालाइज करके वो पूरा जो 8-10 साइट रहेगी वो भी कंट्रोल करता है। एक ओनर कैसे कंट्रोल करता है वैसे ही कंट्रोल करता है।
वैसे ही आपको खाली आना है। यहाँ पे खाली 1 घंटे में हम पूरी टीम आपको ये सभी एक्सपीरियंस देने के लिए रेडी है, जो आपको खाली 1 घंटे में लेना है डेली। हाँ, तो आपके जॉब रोल की इन्वॉल्वमेंट्स क्या क्या रहेगी, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। ये साइट अगर हम कंसिडर करते हैं तो आपको प्लानिंग भी करना है वो प्रोजेक्ट का टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी करना है, वो प्रोजेक्ट का क्वांटिटी सर्वेइंग बिलिंग करना है, उसकी क्वालिटी आपको प्रोजेक्ट की देखनी है, क्वालिटी प्लान बनाने से लेके वो पूरा एग्जीक्यूट करने तक। वो प्रोजेक्ट की सेफ्टी आपको देखनी है, वो प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है और वो डे टू डे कैसे काम करते हैं, तो वो भी देखना है आपको। प्रोजेक्ट कंट्रोल टीम कैसे काम करती है और स्ट्रक्चरल के एंगल्स क्या क्या है ये साइट के लिए, वो भी आपको देखने हैं। उसके साथ साथ कौन कौन सी एजेंसी के साथ मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो आपको मेन कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, इनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट साइट के ऊपर जाते हैं, मतलब जो अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे साइट ही करना है, तो साइट के ऊपर जाते हैं तो आपको लिमिटेशन क्या आ जाती है, आपको मेन कॉन्ट्रैक्टर को मिलने के लिए एक आध बार नहीं हो सकता, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टर और लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप मिल सकते हैं क्योंकि वो फैमिलियर हो जाते हैं, आप ऑन ग्राउंड रहते हैं वो लोग। लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपको मिलने को नहीं होगा। उसके उसके टर्म्स कंडीशंस क्या है, वर्क ऑर्डर कैसी है, वो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट आए, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट आए, प्लम्बिंग कंसल्टेंट आए, उन्होंने क्या थीम लेके, क्या माइंड में कंसिडरेशन लेके ये डिजाइन की हुई है, वो कौन से एंगल से चेक करते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे अगर आप साइट पे ऊपर काम करते हैं तो आपको सीखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कंसल्टेंट आते हैं तो पहले मिलते किससे है, प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर चेकिंग के टाइम पे हमेशा साथ में रहता है और सीनियर इंजीनियर रहता है। जूनियर इंजीनियर का काम वो रोल में आता नहीं, उनको 1-2 साल तो कम से कम ये उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आता, तो फिर आपको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा कि क्या क्या एक्चुअल में होता है। ठीक है, तो आपको अभी ये ऑनलाइन की फैसिलिटी स्टार्ट है, तो आपको ये भी थोड़ा सा लेना चाहिए कि पॉजिटिवली कि सभी चीजें मैं कैसे सीख पाऊंगा। उसके साथ साथ वो कॉन्ट्रैक्टर होने के बाद, कंसल्टेंट होने के बाद, वेरियस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लॉक एंड की प्रोजेक्ट है, स्टार्ट से लेके एंड तक हम ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने वाले हैं। उसमें आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा, ब्रिक वर्क प्लास्टर आ जाएगा, वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा, जिप्सम कॉन्ट्रैक्टर, डोर कारपेंटर, विंडो और स्टील फैब्रिकेटर्स। उसके साथ साथ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, एक्सकवेशन कॉन्ट्रैक्टर। अभी ये प्रोजेक्ट का फर्स्ट लैब हो गया है, लेकिन सेकंड जब भी सेकंड बिल्डिंग चालू हो जाएगा 4-5 महीने बाद, तभी आपको ये एक्सकवेशन भी हम वहां पे दिखा सकते हैं। और अभी से अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तब तक आपको मतलब ये पूरा वार्म अप आपका हुआ रहेगा, आपको सभी टर्मिनोलॉजी पता रहेगी, सभी चीजें पता रहेगी, और नेक्स्ट बिल्डिंग से आप पूरा फुल फ्लेज में एग्जीक्यूशन के लिए जो डिसीजंस ले सकते हैं वो डिसीजन आप ले पाएंगे। वैसे ही डिपार्टमेंट लेबर के सप्लाई, फायर फाइटिंग कॉन्ट्रैक्टर आने वाले हैं, एसटीपी कॉन्ट्रैक्टर आने वाले हैं, ये सभी सर्विस कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी आपका इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। उसके साथ साथ मशीनरी, मशीनरी के सिवा तो काम होता नहीं है, आरसीसी के लिए मेजर मशीनरी लगती है, तो वो मशीनरी कैसे रहती है, उसके आउटपुट्स कैसे रहते हैं, ये प्रोजेक्ट के ऊपर करीबन मेजर ये मशीनरी यूज हो रही है। स्टील कटिंग मशीन है, स्टील वाइंडिंग मशीन है, टॉवर पेन अभी लगने वाला है ऑरेक्स लैब होने के बाद, कंक्रीट पंप, बूम प्लेसर, मटेरियल लिफ्ट्स, RM800 मिक्सर और कॉम्पैक्टर्स। तो ये सभी चीजों कैसे वर्क करती है, इनके आउटपुट्स कैसे रहते हैं, इनको असेंबल कैसे किया जाता है, इनके प्रोडक्शन के नॉर्म्स कैसे रहते हैं, इनके कैलिब्रेशन करने पड़ते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, क्या क्या चेक करते हैं कैलिब्रेशन में, ये सभी चीजें भी एज ए इंजीनियर आपको मालूम होनी चाहिए। प्रोजेक्ट कंट्रोल आपको करना है, मैनेजमेंट में जाना है, तो ये चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपको खाली मैनेजर है, आप किसी के सुनने से खाली अगर डिसीजन लेते हैं तो क्योंकि आपको भी कुछ मालूम होना चाहिए जो आप वेरीफाई कर पाए डेटा। अगर साइड से कुछ आता है, किसी ने बोल दिया कि 200 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हो गया है, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो एक्चुअल जो स्लैब है वो कितने क्यूबिक मीटर का है, और उसने बोल दिया, गलत बोल दिया, सही बोल दिया, या वेस्टेज ज्यादा गया है, समझ लीजिए आपको पता है कि 180 क्यूबिक मीटर का है, 20 क्यूबिक मीटर ज्यादा गया है, तो एक्चुअल में 20 क्यूबिक मीटर क्यों ज्यादा गया है, एक्चुअल दूसरा की कहीं पे भी और काम हो गया था, या किसी की गलती है ये निकालने में। तो आपको तुरंत वो एनालाइज करना चाहिए, ना कि खाली डेटा एंट्री का काम करना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर्स भी सिखा रहे हैं। एक्सेल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थोड़ा लेट आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंटेशन के काम हमारे एक्चुअल आपके कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आएगा। एटोकैड है, MS प्रोजेक्ट है, ERP है, रेविट आर्किटेक्चर है, रेविट स्ट्रक्चर है।
तो ERP तो करंट बिल्डर में है, इसलिए उसके सेशंस हम ले लेंगे, लेकिन MSP तो आपको प्लानिंग के लिए लगता है, वो तो आपको चाहिए। रेविट आर्किटेक्चर और रेविट स्ट्रक्चर है, ये इसका खाली हमने आपको कुछ सिखा नहीं रहे, हमने जो 3D बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट का 3D आपने देखा, तो वो 3D जो बनाया हुआ है उसका रेविट आर्किटेक्चर में बनाया था और उसके बाद उसको रेंडरिंग किया था। तो रेविट आर्किटेक्चर का मॉडल रेडी है, उसके ऊपर हमने खाली कमांड्स दी हुई है, तो वो देख के एज अ इंटर्नशिप करके आप वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं रेविट आर्किटेक्चर का भी। और रेविट स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट के ऊपर काम चालू है। हमारा यही ख्वाहिश है कि यही एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर हम सभी चीजें मैक्सिमम इम्प्लीमेंट कर पाए। इसका कमिटमेंट नहीं दे रहे हम लोग, पूरा हो पाएगा नहीं, लेकिन जैसे जितने भी मॉडल रेडी हो जाएंगे हम आपके लिए स्टडी के लिए ये दे देंगे हम आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये सभी चीजें फिर होगी कैसे होने वाला है, तो हम आपको डे टू डे एक ड्राइव, आप जब भी एनरोल करते हैं तो आपको एक ड्राइव के ऊपर एक एक्सेस दिया जाता है, जहाँ पे आपको डेली के फोटोज रखे हुए मिलते हैं, डेली का कॉन्क्रीट रिपोर्ट मिलता है, डेली के मटेरियल रिसिप्ट मिलते हैं, लेबर रिपोर्ट मिलता है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर भी पोस्ट किया जाता है, और डेली वर्क की एक्टिविटीज वो आपको ड्राइंग के ऊपर मार्क करके वो भी मिलती है, और डेली वीडियो जो आपके हैं वो डेली वीडियोस भी आपको जैसे अभी दिखाया मैंने वैसे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीजें आपको अभी खाली एंट्री ही करना है, क्योंकि आपको पता चले कि कैसे एंट्री किया जाता है। उसके बाद हम आपको इसके एनालिसिस कैसे करते हैं, इसका यूज कैसे किया जाता है, ये हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ हम आपको क्या देंगे, तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। तो तब तक ये एक बार ये देख लीजिए, मुझे प्रेजेंटेशन खत्म कर लेता हूँ मैं। आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको इंटर्नशिप का ऑफर लेटर मिलेगा, उसका एक सैंपल मैंने रखा हुआ है, दिखा देता हूँ मैं आपको वो। उसके साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एड ऑन ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा, और एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो हमने बनाना चाहते हैं आपके लिए। जैसे कि एक आधा आर्किटेक्ट रहता है, एक आधा इंटीरियर डिजाइनर रहता है, वो आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर जब इंटरव्यू को जाता है उसके रिज्यूम के साथ साथ उसका पोर्टफोलियो भी रहता है, लेकिन सिविल इंजीनियर को कभी पोर्टफोलियो रखता नहीं, रिज्यूम भी उसका जैसे क्रिएटिव होना चाहिए, जैसे सभी डिटेल्स ऐड होने चाहिए, इंपॉर्टेंट वो नहीं रहती है। ये फॉर्मेट है अपना आपके इंटर्नशिप ऑफर लेटर का। यहाँ पे ड्यूरेशन कब से चालू हो गया आपका रहता है, कभी आपको रिपोर्टिंग करना रहता है, किसको रिपोर्टिंग करना है, प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, करंट बिल्डर्स है, ट्रेनिंग पार्टनर सिविल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब अपना इंस्टीट्यूट है, और इंटर्नशिप पीरियड आपका यहाँ पे लिखा आएगा। आपने एक 1 मंथ के लिए लिया, 3 मंथ्स के लिए लिया, 6 मंथ के लिए लिया, 1 साल के लिए लिया, या आपने डायरेक्ट पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक, मतलब 18 मंथ्स या मैक्सिमम ने 24 मंथ्स रखा हुआ है, उतने तक लिया। उसके बाद आपको कुछ एडिशनल टर्म्स कंडीशंस रहती है, जैसे ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटी रहती है उसी टाइप से, रिटर्न ऑफ मटेरियल, नॉन डिस्क्लोजर, ये सभी जो हम आपको डेटा शेयर कर रहे हैं आप उसका ये आपको हमारा साइन यहाँ पे रहेगा, आपका साइन यहाँ पे एक्सेप्ट करके आएगा, और विटनेस का साइन रहेगा, ये आपको हमें साइन करके देना पड़ता है। तो ये आपको एक ऑफर लेटर मिलेगा, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस लेटर आपका कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, उस पर भी ड्यूरेशन मेंशन किया रहेगा, कहाँ पे आपने कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, कॉन्ट्रैक्टर कौन था वहाँ पे, और उसके साथ साथ क्या क्या एक्टिविटीज आपने वो प्रोजेक्ट पे सीखी है, जैसे अंडरस्टैंडिंग टोटल स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, बिल्डिंग प्लानिंग एंड एनालिसिस, प्रोजेक्ट WBS क्रिएट करना, RCC पुटिंग और उसके एग्जीक्यूशन के प्रोसीजर्स, IS कोड वगैरह जो भी आपने वो मंथ में वो ड्यूरेशन में आपने सीखे होंगे, वैसे आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मिलेगा, और एक ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप, ये इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको मिलेगा। ये कैसे, अभी तो सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं आपको, अगर लगता है तो हार्ड कॉपी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, लेकिन 2-3 महीने बाद जब ये पूरा यहाँ पे सिचुएशन भी कम हो जाएगी, पूरा हम फुल फ्लेज इंस्टीट्यूट चालू कर पाए, उसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे आपको, हार्ड कॉपी भी आपको चाहिए रहेगा तो उसके लिए जो अलग से नॉमिनल चार्जेस रहेंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। मॉक इंटरव्यू लेंगे हम आपका, जो प्रोजेक्ट टोटल कंप्लीट करेंगे उनके लिए। नो नीड फॉर सेपरेट ट्रेनिंग, आपको ये जैसे मैंने कहा कि ऊपर में सॉफ्टवेयर, ये तो इसका जरूरत नहीं है आपको अलग से कुछ क्लास लगाने का। रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे अपने ऐप के ऊपर, और एट द एंड मैं ये से कहना चाहूंगा कि आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा
जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उसकी एक वैल्यू रहेगी, आप कॉन्फिडेंस के साथ जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और हमें अगर ऐसा लगता है कि आप में कुछ चार्म है तो हम आपको लिए जॉब रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, ये अपना इंस्टीट्यूट ISO 9000 और 2015 है। थोड़ा सा मैं प्रोजेक्ट के बारे में और आपको बताना चाहूँगा। ये मैंने स्ट्रक्चर इंटर्नशिप क्यों है, ये तो मैंने आपको बात बात में सभी चीज़ें बता दी हैं। ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन का हमने जो करने के क्राइटेरिया कुछ रखे थे कि कंपनी जो होगी वो 9000 और 2015 होनी चाहिए, फुल फ्लेज सेफ्टी डिपार्टमेंट होना चाहिए उनमें, ISO 45001 ये होना चाहिए वहाँ पे, और 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम होनी चाहिए, ताकि आपको हम जो एक्सपीरियंस दे पाए वो एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए, ताकि ना कि कोई छोटे एक आधा प्रोजेक्ट लिया और उसके ऊपर से हम कुछ वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं। वो कंपनी का फुल फ्लेज सभी इन हाउस डिपार्टमेंट होने चाहिए, जैसे प्लानिंग है, सेफ्टी है, क्वालिटी है, प्लांट एंड मशीनरी है, और खुद का प्लांट एंड मशीनरी भी होना चाहिए ताकि हम पूरे प्रोसीजर्स आपको दिखा पाए। उसके साथ साथ लॉक एंड की प्रोजेक्ट भी हमने लिया हुआ है। ये हमारे क्राइटेरिया था कि आपको सभी एक्टिविटी एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर देखने को मिल जाए, सभी डिपार्टमेंट के साथ और सभी चीज़ों के साथ। तो लॉक एंड की भी प्रोजेक्ट है ये, और विथ मटेरियल भी प्रोजेक्ट है, इसलिए आपको सभी एक्टिविटीज और सभी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, और फर्म के पास खुद के अलग अलग शटरिंग के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। प्रोजेक्ट कॉस्ट करीबन 2 बिल्डिंग का 75 करोड़ जाता है। ये एक बिल्डिंग है पहला वाला, दूसरा बिल्डिंग पीछे आ रहा है और मैं लोकेशन में दिखा देता हूँ। लोकेशन PCMC पुणे में महाराष्ट्र में है। एरिया अराउंड 5 लाख स्क्वायर फीट है। 2 बिल्डिंग है, करीबन 2 कमर्शियल फ्लोर है, 2 पार्किंग है, प्लस 12 स्टोरेड है उसके। अराउंड 700 फ्लैट्स है 2 बिल्डिंग मिलके। अभी एक पहला बिल्डिंग स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट डेट जुलाई हमने कंसिडर किया था, लॉकडाउन की वजह से रिवाइज हो गई थी, क्योंकि मार्च के करीबन मिड में ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था। जो लेबर वहां पे रुके वो लेबर के साथ काम हमने स्टार्ट कर दिया था, और इंटर्नशिप के लिए हमने जुलाई 15 स्टार्ट डेट कंसिडर कर लिया। कंप्लीशन डेट दिसंबर 2021 है। एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसलिए इसका एक्चुअल वॉक थ्रू कोई बनाया नहीं, 3D भी बनाया नहीं था किसी ने, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो इसलिए हमने खुद होके इंस्टीट्यूट ने इनिशिएटिव लेके ये 3D भी बनाया है, ताकि आपको एक्सपीरियंस आ जाए कि कैसे ये कैसे प्रोजेक्ट दिखेगा, कैसे आगे जाके होने वाला है। और इसका 3D मैक्स के ऊपर 3D के मॉडल जो बनाया है वो खाली रिविट का हमने रखा हुआ है आपके लिए। एक 3 घंटे का पूरा कमांड्स कैसे स्टेप बाय स्टेप किए हैं वो वहाँ पे दिखाई गई है वीडियो के द्वारा, वो आपको देख के करने पड़ेंगे। ये प्रोजेक्ट का लास्ट कॉलम है, और यहाँ पे ये कमर्शियल के लिए थोड़ा प्रोजेक्ट आगे बढ़ा है। ये SW12 है, और स्टार्ट होता है वहाँ पे SW मतलब शेयर वॉल से स्टार्ट है और शेयर वॉल से एंड है। ये रैंप अभी जो आप देख रहे थे, तो ये रैंप था, मतलब इसके नीचे वाला एक रैंप है। उसके साथ साथ करण बिल्डर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको स्टार्ट में ही वीडियो प्ले कर दिया था। करण बिल्डर कंपनी कैसे है, क्या है, आपको चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। प्रोजेक्ट स्टेटस 15 जुलाई को क्या था वो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि 15 जुलाई मैंने स्टार्ट कंसिडर की थी। तो ये UGWT यहाँ पे अंडर वाटर टैंक है, इसलिए यहाँ पे नीचे गया था पूरा पोर्शन, और कुछ 25% फुटिंग्स भी हो गई थी। और ये जो सॉरी UGWT था, मतलब ये लॉकडाउन में इतना काम हो गया था। उसके बाद 14 अगस्त 2020 को करीबन यहाँ का पूरा ये जो राफ्ट है, राफ्ट का भी कंक्रीट होके बीम बॉटम का आप देख रहे हैं कि बीम बॉटम का काम भी स्टार्ट हो गया था, और यहाँ पे ये UGWT है उसका स्लैब का शटरिंग भी होकर रुका था। यहाँ पे UGWT के कारण और नीचे गए थे, इसलिए यहाँ पे बैकफिलिंग के लिए टाइम लगा, क्योंकि थोड़ा लेयर में हमें करना पड़ता है ब्लैक बैकफिलिंग भी। 15 सितंबर का तो मैंने आपको वीडियो दिखा दिया था, उसके ऊपर से आपको आइडिया आ गई होगी कि कैसे क्या स्टेटस है प्रोजेक्ट का अभी। प्रोजेक्ट का 3D डिजाइनिंग का प्रोसीजर आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी फिर हमने 2 महीने में क्या किया, तो थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूँ।
अभी आप बोलोगे आपका 2 महीना आगे प्रोजेक्ट गया है तो हम कैसे ज्वाइन करें, तो आपको एक फिर से एक याद दिलाता हूँ कि ये लाइव प्रोजेक्ट है, मतलब साइट चालू है और ऑनलाइन है। लेकिन तो आपको अगर ये ऐसे लगता है कि समझ लीजिए, चलो वो छोड़ दीजिए, मैं आपको ऐसा कहता हूँ कि आपका ज्वाइनिंग है, आपका कल से आपको ये इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करना है। तो इंटर्नशिप का मीनिंग क्या हो जाता है, कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जिस प्रोजेक्ट जो जो स्टेज पे वो प्रोजेक्ट रहेगा वो स्टेज से आप ज्वाइन करते हैं। भले अगर ये वो प्रोजेक्ट का समझ लीजिए अभी एक स्लैब हो गया है, यही प्रोजेक्ट का पे आपको अगर ज्वाइनिंग है, एक स्लैब हो गया है और वहां पे आपको ज्वाइनिंग करने के लिए बोला है, तो आप ऐसे बोलेंगे क्या कि नहीं मुझे एक्चुअली फुटिंग से प्रोजेक्ट चाहिए था तो मैं ये ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बोलेंगे क्या? तो नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। और ये सब चीजें कैसे सीखोगे, समझ लीजिए एक आधे प्रोजेक्ट के ऊपर प्लास्टरिंग फिनिशिंग का ही काम चल रहा है और वहां पे आपको ज्वाइनिंग मिल गया। अब आप ऐसे बोलोगे कि नहीं मुझे ज्वाइनिंग नहीं करना है, मुझे आरसीसी से फुटिंग से जो प्रोजेक्ट रहेगा वहां पे मुझे ज्वाइन करना है, तो ये आप ऐसे नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट के लिए भी आप ऐसे मत कुछ सोचिए, ऑनलाइन इंटर्नशिप है, आपके माइंडसेट में कुछ लोगों ने डाल के रखा है कि कोर्सेस एक सिस्टमेटिक वे से रहते हैं कि 1 महीने का है, 2 महीने का है, उसमें सभी पूरा पैक करके आपको दिखाया जाता है। लेकिन ये लाइव सब प्रोजेक्ट है और ऑनलाइन इंटर्नशिप है, ये पहली बार इंडिया में हमने ऐसे ही किया हुआ है। ऐसा अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं किया हुआ है ऐसे ही पूरा एक कंसेप्ट देने के लिए। तो इसलिए आपको जब से ज्वाइन करेंगे आप, तब से आपको वो एक्सपीरियंस मिलने को चालू हो जाएगा। पुराना अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो किस साइट के ऊपर भी जाते हैं तो आपको कैसे लगता है, तो सीनियर से बात करते हैं, आप सीनियर से बात करते हैं, ड्राइंग स्टडी करते हैं, पहले के कुछ फोटोग्राफ रहेंगे, रिपोर्ट रहेंगे, तो वो देख के आप प्रोजेक्ट का अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन होने के कारण फिर इसमें हम भी आपको ड्राइंग दे रहे हैं, फोटोज दे रहे हैं, आपको सभी रिपोर्ट्स भी रहेंगे, साइट की टीम है जो आपको डेडिकेटेडली, मतलब ऐसे एग्जीक्यूशन की टीम नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपनी इंस्टीट्यूट की टीम जो है, जो आपको वहां पे है, शाके सर है जो उनका 30+ पर ईयर का एक्सपीरियंस है और 2 जूनियर इंजीनियर्स है, तो उनसे बात करके आप ये प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन का स्टेटस भी ले सकते हैं पहले का भी, मतलब आपको जो कुछ अंडरस्टैंडिंग में नहीं हो रहा है तो, क्योंकि वो टीम फर्स्ट डे से है, जिनको सभी उनको मालूम है, और इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको देख सकते हैं। लेकिन ये अभी यहाँ अब से हमने तो उसका थोड़ा सा चेंज कर दिया था कि रिकॉर्डेड वीडियोस अगर आपको चाहिए रहेंगे तो वो आपको 1000 पर मंथ के हिसाब से आप वो परचेस कर सकते हैं, उसका अलग से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा क्योंकि आपने वो व्यूज किए हैं इसलिए। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया है ये 2 महीने में, तो फर्स्ट मंथ में हमने पूरा ड्राइंग रीडिंग किया था वेरियस एंगल से। वेरियस एंगल्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हर एक का देखने का एंगल अलग रहता है, स्ट्रक्चरल डिजाइनर क्या एंगल से स्टडी करता है ड्राइंग रीडिंग, एग्जीक्यूशन की टीम का एंगल देखने का एंगल अलग रहता है क्योंकि उसको एक्चुअल एग्जीक्यूशन करना रहता है, तो वो क्या क्या पॉइंट्स देखता है उसमें। प्लानिंग की टीम का ड्राइंग रीडिंग करने का एंगल अलग रहता है, उसी के साथ साथ क्वांटिटी सर्वेयर का एंगल अलग रहता है, वो क्या पॉइंट से देखता है। तो इसी तरह से ऐसे ड्राइंग रीडिंग हो गई है, ये सभी चीजें हम नेक्स्ट बिल्डिंग चालू हो जाएगा तभी भी रिपीट हो जाएगी, क्योंकि ये 2-3 रिवीजन हो जाएंगी तभी आपको ये और डेप्थ इसकी पता चल जाएगी। IS 456 इन डेप्थ इम्प्लीमेंटेशन हमने साइट के ऊपर जो किया है, और क्या क्या करना चाहिए वो सभी हमने डिस्कशन कर लिए हैं। DPR DLR 4 रिपोर्ट, इतने 3 रिपोर्ट तो हम अभी डे टू डे फिलअप कर रहे हैं। ISO ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, क्या क्या उनके कंडीशंस रहते हैं ये हमने देखे हुए हैं। रिकंसिलेशन कैसे करते हैं, एक्सकवेशन, PCC, फुटिंग, राफ्ट, UGWT, रिटेनिंग वॉल, उसी तरह से कॉलम, शेयर वॉल, बीम एंड स्लैब अभी तक जो हो गया था वो। तो ये सभी चीजें हमने देखी हुई है, इसके वीडियोस अवेलेबल है, विद नरेशन अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और क्या कैसे कैसे सिखाया जाता है। उसी के साथ साथ शटरिंग कंपोनेंट्स है, अलग अलग शटरिंग कंपोनेंट्स, मतलब बीम के रहने दीजिए, शिकंजा क्या रहता है, शेयर वॉल को कौन कौन से टायर रॉड कैसे रहते हैं, गुगू नट रहता है, फिर जो ये बोलते हैं हम सपोर्टिंग सिस्टम रहता है, प्राइमरी मेंबर क्या रहते हैं, सेकेंडरी मेंबर क्या रहते हैं। तो ये सभी चीजें अगर शटरिंग डिजाइनर अगर आपको बोलने को रहेगा तो और अच्छी तरह से आप बोल पाएंगे, सीख पाएंगे। उसी के साथ साथ क्यूरिंग के लिए हमने अलग से सेशन रखे थे क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है क्यूरिंग भी। साइट मटेरियल का टेस्टिंग, क्वालिटी का प्लान कैसे बनाते हैं, जियो टेक्निकल रिपोर्ट कैसे रीड करते हैं। जियो टेक्निकल रिपोर्ट हमने 3 एंगल से रीड किया था, एक तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, एक एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, और एक क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू। तो जियो टेक्निकल रिपोर्ट में भी
बहुत सारी चीजें देखने को रहती है। क्वांटिटी सर्वेइंग किया है कुछ आइटम का हमने जो अभी तक हो गई थी उनका, लेकिन फ्रेश क्वांटिटी सर्वेइंग हम 1 तारीख से भी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वार्म अप ही चालू था कुछ एक्टिविटी का। अभी साइट की एक्टिविटी समझ में आने लगी है बाकी लोगों को, तो अभी हम क्वांटिटी सर्वेइंग के ऊपर फोकस करेंगे पूरा। मैं आपको शेड्यूल भी दिखा देता हूँ आगे वाले मंथ का क्या है, और साइट ओवरहेड्स। उसके साथ साथ ये छोटी छोटी चीजें हैं, एमटीआर क्या रहता है, डीबीआर क्या मतलब ये एमटीआर मतलब मटेरियल टेस्टिंग रिपोर्ट, तो मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट रिपोर्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट रिपोर्ट ये एक्चुअल में कंपनी की तरफ से आता है, जो स्टील आता है हमारा, सीमेंट आता है, तो ये कभी हम देखते हैं क्या कि हमको जो एमटीआर मिला है वो हमने बराबर से यूटिलाइज किया है, मतलब बराबर से हमने चेक किया है, हमें जो मटेरियल चाहिए रहता है वो आया है नहीं आया है। डीबीआर क्या रहता है, मतलब डिजाइन बेस्ड रिपोर्ट क्या रहता है, वो कैसे रीड करते हैं। क्वालिटी प्लान कैसे रहता है, रिकंसिलेशन कैसे किया जाता है, एसओपी क्या क्या रहती है, हर एक आइटम की एसओपीज क्या रहती है, चेकलिस्ट ओवर हर एक आइटम का क्या रहता है। तो ये भी चीजें जब हम एक 1 to 1 डिस्कस करते हैं। करीबन मैं एनरोलमेंट का आपको स्टेटस भी बता देता हूँ कि अभी तक 13 स्टेट से एनरोलमेंट है ये इंटर्नशिप के लिए। करीबन 30 इंटर्न्स है अभी जो ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब डेली इवनिंग में हम मिल रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश से सभी जगह से हैं। करीबन 17 यूनिवर्सिटीज और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जैसे निकमार और रिसर्च के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे है। एनरोलमेंट अगर वेरिएंट देखते हैं तो सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर से लेके डिप्लोमा से लेके एमआर्च एमटेक के भी ज्वाइन हो गए यहाँ ये इंटर्नशिप के लिए। उसी तरह जो स्टूडेंट्स है वहां से लेके 10+ इयर्स के भी एक्सपीरियंस के कुछ प्रोफेशनल्स यहाँ पे ज्वाइन है। उनका रेशो भी अगर देखते हैं तो 20% लोग जो 5+ ईयर के एक्सपीरियंस है, 5+ ईयर के एक्सपीरियंस के करीबन 10% लोग हैं, क्योंकि उनको भी ऐसे लगता है कि कुछ वो टाइम पे हमें कुछ एक पूरा प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला था, पूरे सभी एंगल्स देखने को नहीं मिले थे, तो वो एंगल हम कैसे देख पाए, तो इसके लिए उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। 2 to 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के 10% है, 0 to 1 ईयर के 20% है, और 60% स्टूडेंट है जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी अभी ली हुई है। नेक्स्ट मंथ का अगर शेड्यूल देखना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट मंथ के हमारे एक्टिविटीज रहने वाली है। करीबन हम आज 20 सितंबर है, तो आज हमने कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर रखा हुआ है। एक्स्ट्रा लेक्चर मतलब हमने इंजीनियर्स डे के लिए ये सेशंस पूरे ऑर्गेनाइज किए थे, ये जो अभी आप देख रही है। तो कल इंजीनियर्स डे के सेशंस खत्म हो रहे हैं, रोल ऑफ प्लानिंग इंजीनियर करके, और आज हमने सेफ्टी के ऊपर रखा है, सेफ्टी एंड सिविल इंजीनियर करके। तो वो सर हम आज हम हमें गाइड करेंगे। तो आप सभी को भी रिक्वेस्ट है, अपने ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये वो लिंक मिल जाएंगी, चाहे तो मैं यहाँ पे भी पोस्ट कर देता हूँ, आप वो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो इवनिंग के सेशन भी, ठीक है। उसके बाद हम ये करने वाले हैं पर्पज ऑफ एस्टिमेशन, पार्ट्स ऑफ एस्टिमेट, वो प्रोजेक्ट के कैसे बनाते हैं। जुजारे सर जो सीनियर है, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनको भी, वो लेंगे ये चीज़ें। क्वांटिटी सर्वेइंग में कॉलम शेयर वॉल, क्वांटिटी सर्वेइंग फुटिंग रिइंफोर्समेंट रूपाली मैडम लेंगी। उसके बाद फिर प्लानिंग, एवरी सैटरडे को हमने प्लानिंग रखा है, और एवरी मंडे को साइट एक्टिविटी हमने प्लान की हुई है। जैसे मैंने कहा कि हम ये 2-3 महीने आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वांटिटी सर्वेइंग, बजटिंग, बिलिंग ये फाइनलाइज करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये फाइनलाइज हो जाता है तो उसके बाद आप एग्जीक्यूशन अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये चीजें हमने फोकस में रखी हुई है ये मंथ के लिए। साइट टीम से मिलवा देता हूँ मैं आपको। करण बिल्डर के प्रमोद सूर्यवंशी सर हैं, ये भी कुछ आपको गाइड करेंगे, लेकिन ये एंड में गाइड करेंगे, क्योंकि इनका जब आप सभी चीजें सीख पाएंगे उसके बाद आपको इनके जो अंडरस्टैंडिंग है प्रोजेक्ट की वगैरह वो समझ में आ जाएगी। तो उनका भी एक ये यूट्यूब पे जा रहा है तो मैं ये स्किप कर देता हूँ, चाहे तो आप यहाँ से देख पाएंगे बाद में भी। तो मैं ये पार्ट स्किप कर देता हूँ और हम क्वांटिटी के लिए आगे, प्रेजेंटेशन के लिए आगे बढ़ते हैं।
एग्जीक्यूशन मेंटर प्रकाश भट्ट सर है, जिनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एज अ चीफ इंजीनियर करके उन्होंने करीबन लास्ट ईयर में खुद का करना है, इसलिए जॉब स्विच कर दिया था। तो एज अ चीफ इंजीनियर करके गगन डेवलपर्स एंड गोयल गंगा ग्रुप में रह चुके हैं। बड़े बिल्डर के साथ उनको काम करने का एज अ एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस है पूरा सभी। तो वो सर आपको गाइड करने वाले हैं। तो देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर से गाइडेंस लेना और जिसने सभी पूरे फेजेस क्रॉस किए हैं, मतलब जूनियर इंजीनियर से लेके वो चीफ इंजीनियर रह चुके हैं, उनसे गाइडेंस लेना वो कभी भी अलग है। और अगर आप एक्चुअल साइट के ऊपर जाते हो, एक्चुअल अगर आप इंटर्नशिप करते हो, तो ऐसे मेंबर से आपको मिलने के लिए 2-3 साल तो लगेंगे। उसके बाद कुछ खाली प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस होगा, लेकिन गाइड करने के बारे में कभी वो आपको बता नहीं पाएंगे। तो ये आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाएगा, ऑनलाइन है। तो सर क्वालिटी ऑडिट भी करते हैं, आईएसओ लीड ऑडिटर है, इसलिए अभी उनको बाकी सभी चीजें भी हम ये प्रोजेक्ट के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल की चीजें आपको बताने के लिए हम डिजाइनिंग नहीं कर रहे, लेकिन स्ट्रक्चरल इंजीनियर का एंगल क्या रहता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के, और क्या क्या करना चाहिए ऐसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर को लगता है, तो वो सौरभ पाटिल सर हमें गाइड करते हैं। श्रीरंग पांडे सर है, जिनका 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो भी वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रह चुके हैं। वो गाइड करते हैं। प्लानिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल मेंटर है अपने। उसके साथ साथ केदार शेलार और मितेश भट्ट, जो BCV MBA और MTech है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, वो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि अभी 4 साल उनका एक्सपीरियंस भी है, कि जो भी उन्होंने MTech और MBA में सीखा है वो सभी चीजें उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, ये प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है। तो जैसे कि लीन कंस्ट्रक्शन रहने दीजिए, CPM पर जो भी पार्ट्स है, DPR है, वो उनको सभी ये करना है। उसके साथ मैं आपका पूरा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहने वाला हूँ। कॉस्ट कंट्रोल और MIS मेंटर में रहूंगा आपका। आपको कुछ ये चीजें मेरी तरफ से हो जाएगी, या मैं पॉसिबल नहीं हुआ तो जुजारे सर है, उनसे दोनों भी चीजें मिल जाएंगी आपको। जैसे कि स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करना है, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क ऑर्डर, जीरो बजट क्या रहता है, फाइनल बजट क्या रहता है, MIS रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स, रिपोर्टिंग, कम रूल्स, एनालिसिस, कॉन्स्टेंट्स, ये सभी चीजें आपको एक मैनेजर बनाने के लिए लगती है। तो ये मैं लूंगा, नहीं तो जुजारे सर है वो लेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेली, वीकली, मंथली क्या रहती है वो हमने डिफाइन कर दी है। उसके वो देख के आपको थोड़ा सा करना है, कंपल्सन नहीं है, लेकिन आपने किया तो आपके लिए बेनिफिट है। और वो जो हमने पोर्टफोलियो बोल रहे हैं, कि वो पोर्टफोलियो भी आपने किया तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है वो, ठीक है। इंटर्नशिप ड्यूरेशन जैसे मुझे पूछा गया था, तो एज पर योर चॉइस है। जैसे आप कंपनी में ज्वाइन करते हो उस दिन से आपको ऑफर लेटर मिलेगा। जब भी आप छोड़ते हो उसके लिए कुछ हमने ड्यूरेशन रखे हुए हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। तो जब भी आप एग्जिट करते हो तब तक आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, और तब तक आपको एक्सपीरियंस ये भी मिल जाएगा, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो भी मिल जाएगा। तो ये ड्यूरेशंस है। आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो आपको इंटर्नशिप ऐप है अपना, ये सिंबल है उसका, मैं चाहे तो लिंक अभी आपको पोस्ट कर देता हूँ। ये ऐप से आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पे कुछ फीस रखी हुई है, डिस्काउंट आपको चाहिए उसमें, क्योंकि करीबन फीस हमने ज़्यादा रखी थी, मैं फीस भी ये कर देता हूँ। तो आपको इसलिए कांटेक्ट करना पड़ेगा हमें। ज्वाइनिंग प्रोसीजर्स आपकी ऐप के थ्रू ही करनी है, या हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उनके थ्रू आपको ज्वाइन करना है। फीस करीबन 2 इयर्स के लिए हमने 50,000 रखी थी, लेकिन एक गरीब से गरीब लड़का भी ये कर पाए, क्योंकि 2 साल के लिए हमें पूरा ये एक्सपीरियंस उनको देना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। ये सभी फैकल्टीज आपको गाइड करने के लिए रहने वाली है। साइट के ऊपर की टीम है, जो 3 लोगों की टीम है वो ये करेगी। जो बाकी रिसोर्सेस है, यहाँ से साइट करीबन 30 किलोमीटर लंबा है, तो 30 किलोमीटर अप डाउन करना भी अगर रहेगा तो भी पेट्रोल का खर्च मेरे ख्याल से 1500 रुपए तक आ जाता है पर मंथ का। लेकिन आपके लिए ये पर मंथ 1000 रुपीज से भी कम खर्चे में 2 साल का अगर आप इंटर्नशिप लेते हो तो है। खाली 20,000 में 2 साल का इंटर्नशिप है, मतलब 1000 रुपीज से भी आपको कम में पूरा ये एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इंडिया में कहता हूं मैं कि इंडिया में सबसे कम जो कॉस्ट रहेगी कोर्स की, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। वो कोर्स की कॉस्ट आप कैसे एनालाइज करेंगे, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप भी एक इंजीनियर है, आप भी एनालिस कर सकते हैं। 2 साल डेली 1 घंटा एक और आपको देना है। खाली संडे को छुट्टी रहती है वो भी, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटीज रखते हैं हम उसमें।
2 साल डेली 1 आवर विद दिस एक्सपर्ट फैकल्टीज और लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है आपको, और सभी सॉफ्टवेयर्स वगैरह मिला के फीस ये इंक्लूड कर दी है। तो आप चॉइस ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं पर आवर की कितनी कॉस्ट आ रही है कंपेयर टू अदर कोर्सेज। मतलब 1000 पर मंथ। आपको तो ऐसे लगा होगा कि आपने कुछ कोर्सेज लगा दिए, 8 दिन के 15 दिन के कोर्सेज को भी 1000 रुपये 2000 रुपये फी रहती है। हम खुद लेते हैं ना, 2 दिन के वर्कशॉप के लिए हमारे ईट एंड ड्रिंक के वर्कशॉप को 5000 फीस है। 5 दिन का भी ऑनलाइन है, इसलिए 5 दिन का डेली 2 घंटा मतलब 10 आवर्स के लिए हमारी फीस उसकी 2000 रुपीज है। 1 घंटे के लिए जो आज का था उसके लिए 1000 फीस है। ऐसे अगर आप देखने जाते हैं तो एज कंपेयर टू ये बाकी सभी चीजें, कौन सा भी ले लीजिए आप कोर्स, तो उससे फीस कम ही रखी हुई है। 1 साल के लिए 15,000 रुपये है, 1 मंथ के लिए करना है तो 2500 है, लेकिन वो भी कम कर दी है। 1 मंथ के लिए खाली 2000 रुपीज फी रखी हुई है, क्योंकि हमने वहां से वीडियो का पार्ट निकाल दिया है। वीडियो अगर आपके प्रीवियस लेने हैं तो आपको 1000 वो पर मंथ के आपको पे करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ 3 मंथ के लिए 6000 रुपीज है और 6 मंथ के लिए 10,000 रुपीज है। ठीक है, ये फी स्ट्रक्चर है। आपको और भी एक ये है कि आपको अगर डेमो चाहिए रहेगा तो डेमो हम फ्री में नहीं दे रहे। 1 वीक का डेमो क्लास अगर आपको करना रहेगा तो हम मंडे से लेके सैटरडे तक आपको लिंक, जूम का लिंक दे देंगे, आप डेली वो अटेंड कर पाएंगे। उसके साथ साथ 10 पहले के 10 इंपॉर्टेंट वीडियो, मतलब 7 दिन का सेशन वीक का प्लस ये 10 दिन, मतलब करीबन 17 डेज का आपको ये मिलेगा। उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेकिन 15 डेज इंटर्नशिप का मिलेगा, 15 दिन का। वो खाली आपको 500 रुपये में मिलेगा। उसके बाद आप चाहे तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको खाली वीडियोज ही लेने हैं, आप बोल रहे कि और फीस में आपको ये चाहिए, तो पर मंथ वीडियोज का और मंथ वाइज वीडियो लेना चाहते तो वो 999 कॉस्ट हमने रखी हुई है। ठीक है, तो थैंक यू। मैं यहीं पे अभी रुकता हूँ, और आपके जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे हम अभी ये कर देते हैं। मैं आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ कि आपको जो कोर्सेस आप ये बोल रहे थे कि कॉन्टैक्ट नंबर हमारे, और उसके साथ साथ ऐप की लिंक। मैंने अभी कांटेक्ट नंबर पोस्ट कर दिए, आप चाहे तो ये करके रखिए। पूजा मैडम का आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंद्र कुमार है साइट इंटर्नशिप के लिए। और अगर किसी को स्ट्रक्चरल इंटर्नशिप भी करना है तो वो भी अलग से है हमारे पास, 3 महीने का सैटरडे संडे वीकेंड है, वो भी स्टार्ट हो रहा है। उसमें हम अलग अलग 5 प्रोजेक्ट लेंगे, ईटैब, सैप, सेफ, आरसीडीसी और स्टैडप्रो के ऊपर। वो अलग अलग से 5 प्रोजेक्ट्स लेंगे। वो वीकेंड का है, वो भी स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए हर्षले मैडम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अवधेश, मैंने अभी ये कहा कि देखिए, डिप्लोमा डिग्री ये हमने कैसे किया, हमें आदत लगाई है अभी तक कि कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो एक्चुअल में देखा जाए, आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्वालिफिकेशन को कुछ भी जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो हम तो ये कोर्स उसको भी दे देंगे जिसको खाली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बिल्डर भी बनना है, उसको कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इतना सिंप्लीफाइड है। सभी चीजें आपको एक्चुअल साइट के ऊपर सिखाने वाले हैं, इसलिए डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। मैं तो कहा था कि 6 स्टैंडर्ड का बच्चा अगर ये कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, तो हमें एज अ सिविल इंजीनियर एडमिशन लिया तो अभी हमें करियर उसमें ही करना है। हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ, मतलब 20-22 साल बाद आप 20-22 ईयर्स के आप हो जाएंगे, तो उसके बाद तब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 60 ईयर्स तक अगर आप काम करेंगे तो 40 साल आपके प्रोफेशनल लाइफ के हो जाते हैं। तो वो 40 साल आपको कैसे बिताने हैं वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज के टाइम से ही। क्योंकि अगर स्टार्ट खराब हो गई, एक बार आपने प्रोफेशनल लाइफ आपकी चालू कर दी, वो अगर आपकी स्टार्ट खराब हो गई तो आपको फिर ये नहीं होगा। बाद में यू टर्न लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2-3 साल बाद आप अगर आप ये करना चाहते हैं कि फिर से मुझे रिटर्न आना है और मुझे दूसरा एक्सप्लोर करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अमरजीत, पेमेंट प्रोसेस पार्ट में नहीं हो सकता है क्या? पार्ट में है ना, आप 1 मंथ का ले लीजिए, इसलिए पार्ट किए हैं। एक्चुअल में हमारा तो ये नहीं था कि 1 मंथ का करना चाहिए ऐसे करके, लेकिन स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स में नहीं है क्या, तो इसलिए हमने वो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ ऐसे ड्यूरेशन कर दिया है। हमारी तो ख्वाहिश है कि पूरा आप कीजिए, तभी आपको पूरा एक्सपीरियंस मिल पाएगा। और
देवेश बिरला आपने शायद पीपीटी भी देखी होगी, फिर से मैं शेयर कर देता हूँ। 1 मंथ की फीस क्या है, 2000 रुपीज फीस है 1 मंथ की। अभी आपको सभी लोगों को आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि साइट पे जाना है तो ऑब्जर्वेशन के सिवा कुछ होगा नहीं। अच्छा ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए अपना, जो भी चीजें बोलते हैं कहाँ पे, तो भी हम अभी प्रोफेशनल लाइफ में जाने वाले हैं। मैं आपको ज्वाइन कैसे करना है उसका ऐप का लिंक भी भेज देता हूँ, ऐप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर तो मैंने आपको दिए हुए हैं, और आपको चाहिए रहेंगे तो ये भी देता हूँ। और मैं आपको अभी अनम्यूट कर देता हूँ, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और मैं आपको ऐप के ऊपर कैसे अपना ये होने वाला है, कैसे वीडियोस देखने के, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तब तक मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके, आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछने रहेंगे तो। सर हेलो। ये हाँ, एक मिनट, मैं खाली थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि कैसे है ऐप के ऊपर कैसे देखना है। तो ये ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके वहाँ पे रहेगा इंटर्नशिप का। तो 12 मंथ 6 मंथ ये आपको फीस भी यहाँ पे दिखाई दे देगी। तो वहाँ से आपको जाके क्या करना पड़ता है कि कंटेंट में जाना पड़ता है, और कंटेंट में ये वीडियोस आपको देखने पड़ते हैं। हाँ, तो ये से वीडियोस, हम रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास भी रहेंगे, डे टू डे जो होते हैं, दूसरे दिन हम वो अपलोड कर देते हैं। जैसे अगर ये 17 अगस्त से 16 सितंबर के अगर आप देखना चाहते हैं, तो एक एक मंथ के रखे हुए वैसे। तो एग्जीक्यूशन फुटिंग कैसे किया गया है, कॉलम के और ब्लॉक वैसे कैसे कहते हैं, फुटिंग शटरिंग का कैसे किया जाता है, क्वालिटी प्लान कैसे बनाते हैं, कॉलम शटरिंग कैसे करते हैं। एग्जीक्यूशन के टाइम पे बीम फॉर्म वर्क रहने दीजिए, मतलब बीम का फॉर्म वर्क जो हम करते हैं उसके भी 2 सेशंस हो गए थे। तो आपको मैं थोड़ा सा एक दिखा देता हूँ कैसे वीडियो ये रहता है सेशन। तो ट्रांसफर ओके हमारे यहाँ पे इन इंडिया तो ये सारंग आचार्य जी है, जो ये पूरा आपको शटरिंग डिजाइन, मतलब उनका 15 इयर्स का एक्सपीरियंस शटरिंग में ही है। मतलब वो एक करियर ऑप्शन भी हो सकता है जो हमारे पास अनएक्सप्लोर्ड है। हाँ? तो ऐसे पूरा आईएस कोड में भी बता के कि क्या क्या कहाँ से लिया रहता है, डिप्लॉयमेंट का वर्किंग थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ये बीम का अभी देख रहे थे, तो बीम का लेंथ डेप्थ ये कितना है, विड्थ कितना है, तो बीम बॉटम का कितना एरिया आ रहा है, बीम साइड का कितना एरिया है, उसका डिप्लॉयमेंट प्लान कैसे बनाते हैं। एक्चुअल साइट के साथ साथ फोटोग्राफ ये करके आपको फिर ये भी दिखाया जाता है। दूसरे साइट के रेफरेंसेस, ये अपने साइट के फोटोज वीडियोस दिखा के आपको ये पूरा एक्सपीरियंस दिया जाता है। तो ये एक्चुअल साइट का फोटोग्राफ, तो यहाँ पे आप ये सपोर्ट कैसे दिया है, एक्स्ट्रा दिया है, ये क्या रहता है। तो ऐसे सब सारे वीडियोस आपको डे टू डे डेली इवनिंग में हम डिस्कस करते हैं, और ये वीडियोस आपको बाद में दूसरे दिन आपको ये करने के लिए रह जाते हैं, रेफर करने के लिए रह जाते हैं। उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन का भी अगर आप देखते हैं, तो एग्जीक्यूशन के वीडियोस साइट के ऊपर से आते हैं, और वो हम वीडियोस ये कितने कैसे बांधा है, कौन कौन सा स्टील दिया हुआ है, वो विद ड्राइंग रेफरेंस के साथ दिए जाते हैं। ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं स्लैब लेवल के कैलकुलेशन कैसे किए हैं। ना हो इसके लिए ये मल्टीपल ऐसे डे टू डे जो वीडियोस रहते हैं वो हम ये करते हैं कि स्लैब लेवल के कैलकुलेशन, बीम बॉटम के कैलकुलेशन, बीम बॉटम लेवल चेक कैसे की गई है, लाइन कैसे चेक करते हैं, स्लैब का शटरिंग कैसे करते हैं,
स्लैब शटरिंग की लेवल कैसे चेक करते हैं, बीम रिइंफोर्समेंट कैसे, टू वे स्लैब का रिइंफोर्समेंट, टू वे स्लैब का रिइंफोर्समेंट 2 पार्ट में किया था ये, संकन स्लैब का रिइंफोर्समेंट कैसे रहता है, हाँ, और उसकी चेकलिस्ट क्या रहती है फिर, और उसके साथ साथ ड्राइंग भी, ड्राइंग के ऊपर क्या लिखा है और एक्चुअल में क्या हो गया है, हाँ? तो ये ऐसे पूरा डे टू डे साइट की चीजें हम देखते हैं। आपको प्रोग्रेस मार्क करना रहता है, वो प्रोग्रेस मार्क करने के लिए ऐसे कुछ सेशंस लेते हैं जो डीपीआर आपको समझाया जाता है कि कैसे डीपीआर फिल किया जाता है, और बाद में वो आपको करना रहता है। ये भी एक्सेल में आपको मतलब ये कैसे बनाना है, कैसे फिल करना है डे टू डे। जब हम पूरा प्लान बनाएंगे तो ये हर एक चीज का एनालिसिस पे लिखना पड़ेगा या फिर ऐसे कुछ है और उसके चीज में जाएंगे। ये अपना ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है जो कैसे हमने टेम्पलेट दिया हुआ है कि ऐसे आप कर सकते हैं। आपके जितने भी इधर पिक्टोरियल पे जितना आपको मतलब हम ताकि ये डे टू डे आप मेंटेन रखोगे तो एक अच्छा सा आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा आपको आगे दिखाने के लिए। ऐसे बहुत सारा कंटेंट है कि जैसे कि एक देखते साइट के अपडेट के लिए फॉर्मल टॉक, साइट एग्जीक्यूशन, कंक्रीट मिक्स डिजाइन के ऊपर है, क्वालिटी साइट के ऊपर कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए, प्रोजेक्ट ब्रीफ कैसे बनाया जाता है, आरएमसी बैच रिपोर्ट, क्यूब टेस्टिंग रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। आपको मैंने वैसे लिंक भी दे दिया है, मैं आपको एक लिंक पे और एक देता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून वर्षित जी, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम 2 इयर्स की लेते हैं इंटर्नशिप और अभी जो मतलब लॉकडाउन वगैरह अगर हट जाए, अनलॉक की परमिशन अच्छे से मिल जाए, तो क्या हम साइट पर आकर वो ले सकते हैं साइट एक्सपीरियंस भी? लाइक मैं इंदौर में रहता हूँ ये और पूना में साइट है, पुणे आकर। और साइट यस पे सर। आके एक्सपीरियंस लेने तो से अच्छा क्या है कि ये आप वहाँ पे ही बैठ के अगर ये लेते हैं ना तो वो और अच्छा, क्योंकि साइट के ऊपर जैसे मैंने कहा कि साइट के ऊपर आपको उतना डिटेल में कोई नहीं बता पाएगा। आप आके देख लीजिए, नहीं तो हमारे टीम है ना साइट के ऊपर जो इंजीनियर्स है ना, वो भी 2 जूनियर ही है, उनसे आप बात कर सकते हैं कि उनको साइट के ऊपर कितना सीखने को मिलता है और यूनिक में सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मतलब ये भी प्लस साथ में साइट देखने का भी रहेगा तो वो साइट विजिट कर सकते हैं, उसको हमको परमिशन लेके एक आध दिन सभी लोगों के लिए हम ऐसे फिक्स मंथली रख देंगे, वो दिन पे साइट विजिट हम रख सकते हैं। यस सर, क्योंकि लिंक करने में फिर थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना वो तो फिर सर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जैसा रहेगा। स्कूल कॉलेज के साथ कंपेयर मत कीजिए इसको। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोले ना, स्कूल कॉलेज के साथ कंपेयर मत कीजिए बोला मैंने। ओके सर। ठीक है। और किसको कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अमर जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, मैं अभी 3 महीने की इंटर्नशिप करूंगा तो सर उसमें 5,000 फी है, तो सर उतने में पेड नहीं कर सकता सर एक टाइम में? मतलब पार्ट में वो पेमेंट नहीं हो सकते क्या सर? मतलब 2,000 अभी पेड कर रहा, फिर उसके बाद 3,000 वैसे तो नहीं है। एक वीक या आप देख रहे हैं कि बहुत कम फी है, 5,000 रुपए में 3,000 तीन महीने डेली का कोर्स का आप कहाँ पे अफोर्ड करें? आपने कोर्स से अभी तक कोर्सेज किए हैं अमर जी? सर मैंने सिर्फ वहाँ पे ये किया है सर, डेली क्विज बस। मतलब सर मैं वो ऐप पे बहुत बार गया हूँ, पर वो पैसे की वजह से सर मैं नहीं, रिटर्न आ वहाँ नहीं चुका बोल हूँ रहा हूँ मैं, कितनी बार। दूसरा बाहर कहाँ से यार? अंजनगांव सुरजी, अमरावती डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा। तो बाहर दूसरे कुछ कोर्सेज किए आपने? कभी के पास आउट है आप? मैं पास आउट नहीं हूँ सर, फाइनल ईयर चालू है मेरा। मतलब अभी अक्टूबर में मेरे पेपर है सर अमरावती यूनिवर्सिटी के अच्छा। ऑनलाइन।
1 अक्टूबर से। ओके, देखिए आप 3 महीने का भी लेते हो ना, तो आपको 5000 में 3 महीने में 3 महीने में तो हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट सर्विंग जिसका फीस 10,000 रुपीज है 2 महीने का, तो उसको हमने खाली बाय था हाँ सर। आपको मिल रहा है। तो आप ही सोचिए कि कैसे ये करना है, क्योंकि थोड़ा तो आपके लिए भी अभी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तरफ से हमने लोएस्ट दे दिया है, इंडिया का लोएस्ट दे दिया हाँ है, सर, बराबर है सर। प्राइस इंडिया का हाँ, लोएस्ट दे आपकी दिया है तरफ से। हमारे हमने। तो उसमें अभी आप सोच लीजिए कि कैसे करना है। आपका वीडियो लेक्चर्स भी हमने नहीं सर, 1000, मैं पैसे का नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं पैसे तो पूरे ही दूंगा, पर वही सर बोल रहा हूँ, उसमें पार्ट तो जो पेमेंट हो। फीस है ना उसमें भी कैसे करना है वो फिक्स है, उसमें अभी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एकदम रॉक ओके बॉटम सर। दे दिया है आपको। आप चाहे तो आपका अगर कुछ ये रहेगा तो ईएमआई का फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर करना है तो देखिए, करने वाला आदमी ये नहीं सोचता है कि कभी हाँ सर, मैं करने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि अ, सर अभी कोरोना की वजह से सिचुएशन थोड़ी सर ये होगी ना, इस वजह से। आप बाहर कंपेयर कर लीजिए और उसके बाद ये कर लेंगे। हाँ, ओके सर। यस। हेलो, हाँ हैदर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं उदय सानी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर जैसे मान लीजिए 3 मंथ का यदि हम इंटर्नशिप लेते हैं तो उसमें क्या क्या मिलेगा अभी से जो 3 मंथ के लिए है? क्या क्या? अभी से जो 3 मंथ के लिए हम इंटर्नशिप अभी लेते जो हैं। 3 मंथ्स के लिए मैंने आपको शेड्यूल दिखाया था ना, वही शेड्यूल रिप्लिकेट हो जाएगा 3 और 2 महीने के लिए। अ, जी हम फोकस 1 तारीख से क्वांटिटी सर्विंग के ऊपर ही कर रहे हैं। क्वांटिटी सर्विंग वो पूरा प्रोजेक्ट का क्यूएस, उसका प्रोजेक्ट का बिलिंग, क्योंकि एक स्लैब हो गया है अभी, और 3 महीने में 2 3 3 4 स्लैब हो जाएंगे, ब्रिक वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक के लिए आपको पूरे एक्टिविटी समझ में आनी चाहिए, बीबीएस कैसे बनता है, क्या रहता है, वो प्रोजेक्ट का टेंडरिंग कैसे किया है, वो प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट कैसे है। तो इसलिए पहले हम फोकस उसके ऊपर कर रहे हैं ये पहले 3 मंथ के लिए। और उसके साथ साथ डेली तो साइट का प्रोग्रेस चलते ही रहेगा अपडेट आपको। थैंक यू सर। यस, डेली सर प्रोग्रेस चलते रहेगा, डेली एक्टिविटीज जो होती रहेंगी वो आप देख पाएंगे डे टू डे। एवरी सैटरडे प्लानिंग के सेशंस रहेंगे, जो वीकली मीटिंग रहती है, उसमें टोटल अभी तक क्या हो गया है, आगे क्या होने वाला है, साइट के ऊपर क्या क्या हो गया है वो रहता है। उसके साथ साथ एमएसपी भी चलते रहता है। सर हाँ, सर जैसे कि पीडीएफ हो यदि आगे के 3 मंथ की प्लानिंग के लिए तो एक बार भेज दीजिएगा सर। वैसे तो पता बताए हैं लेकिन होगा तो भेज दीजिएगा। नहीं है अवधेश जी, साइट है, साइट के ऊपर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो साइट के ऊपर आपको जो जैसे साइट चल रही है वैसे आपको ये करना पड़ेगा। मैंने आपको ये प्रेजेंटेबल ही सभी बोल दिया है, सभी चीजें। आपको जहाँ पे आप ज्वाइन करते हो, जैसे आप अगर मुझे बोल रहे हो कि आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहे हो, हाँ, तो इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहे हो तो कंपनी को आप बोल नहीं सकते कि मुझे प्लानिंग दे दो मैं आ जाता हूँ। हाँ, नहीं सर ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे मैंने मैं आपको बोल दिया है कि क्या क्या लेने वाले हैं, आप फीडबैक ले सकते हैं हमारे सभी इसमें से। ठीक है, आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं, एक्सपीरियंस लेटर भी दे रहे हैं उसमें। ठीक है, थैंक यू। और कौन है? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। यस दीपेंद्र जी बोलिए। अरे मैं कह रहा था कि जैसे कि अभी से सर मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, हाँ 3 महीने के कोर्स के लिए। तो ओके, सर जो मुझे पीछे क्या क्या हुआ सर, उसका वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे क्या? आपको परचेस करने पड़ेंगे 1 मंथ, जैसे कहा ना, वो पर मंथ के लिए 1000 रुपीज आपको ये रहेगा। जैसे सर जुलाई से अभी तक जो काम हुआ वो सारा हम लेना चाह रहे हैं कि क्या क्या हुआ उसमें। तो सर अलग अलग मंथ का देना पड़ेगा कि एक ही बार में सर मिलेगा वो? एक ही बार भी आप ले सकते हैं। वो 2 मंथ्स का और एडिशनल चार्ज उसमें ऐड हो जाएगा 7000 रुपीज। 6000 है मेरे ख्याल से, 6000 रुपीज है 3 मंथ्स के लिए। 5999 है, तो 6000 प्लस 2000, हाँ, इसे 8000 हो जाएंगे। सर और ये जो 3 मंथ का मान के चलिए हम लेते हैं सर, ठीक है, फिर हमको इसको और बढ़ाना है तो फिर कैसे क्या होगा उसमें सर? सेम प्राइस पे आप बढ़ा सकते हैं। ओके, थैंक यू। टोटल प्रोजेक्ट ले लीजिए, ये आपको कम में गिर जाएगा। और वो एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ दे जाएगा, ये ऐसे 3 महीने और ये सर टोटल प्रोजेक्ट ही लेना चाह रहे हैं सर, बट उसका इंस्टॉलमेंट में कर देते तो बेहतर रहता। इंस्टॉलमेंट में आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, मतलब आपका
पहला रिकॉर्ड कैसे है, कार्ड के ऊपर से, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर से भी ईएमआई के ऑप्शन अवेलेबल है आपके ऊपर, वहां से आप ट्राई कर लीजिए वहाँ, क्योंकि हमारे इसमें कुछ नहीं है, टाइम तो ज्यादा वो हो गया। डायरेक्ट बैंक की तरफ से दिया हो गया है वो जो ईएमआई का ऑप्शन है वो, तो आप वहां से ये ईएमआई में कर सकते हैं। और बैंक को आपको पे करना पड़ेगा, जैसे कि 6000 आपने 6000 का ईएमआई ले लिया आपने 3 मंथ के कोर्स से, लेकिन उसको आप 12 मंथ 12 ये मंथ 12 मंथ में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और डाउन करो। 12 मंथ में भी आप कर सकते हैं, या 24 मंथ में भी कर सकते हैं 6000 को। वो फैसिलिटी आपके ऊपर अवेलेबल है, आपके ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ईएमआई के ऑप्शंस अलग अलग मिल जाएंगे, आपको बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, तो उसके ऊपर अगर फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो बैंक की तरफ से, हमारी तरफ से कुछ नहीं हो। हाँ, अगर आप पूरा हेलो सर। मतलब 20,000 है तो आपको 24 मंथ्स का भी आपने कर दिया तो भी वो बेनिफिशियल हो जाएगा। हेलो सर। हाँ तो सर, सर मैंने ऑलरेडी एनरोल किया है, मतलब परचेस कर लिया है 1 मंथ इंटर्नशिप के लिए। कभी? तो सर पूजा सानप मैम ने लिंक से शेयर की थी, अच्छा, कभी तो किया? मैंने पेड कर दिया है कल। अच्छा, तो ओके। ऐप में माई कोर्सेस में नहीं दिख रहा हूँ, तो प्रॉब्लम आ रहा। ठीक है, फिर मैडम से बात कर लीजिए ना, आपने गूगल पे क्यों फोन पे से किया था क्या पेमेंट? हाँ, फोन पे से। फोन पे से किया था ना, तो फोन पे का कभी ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो नहीं सर, रिसिप्ट और वो शेयर किए मैंने मैम से, वो बोले सुनिए ना, कि उनको रिसिप्ट मैसेज आपके रिसीव तरफ हो। से, वो हाँ। रिसिप्ट आपके तरफ से आई रहती है, आपका पेमेंट हमारे ऐप के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बराबर है ना? तो टू वे कम्युनिकेशन होना अच्छा। चाहिए, आपके कट हो गया लेकिन हमारे तरफ नहीं पहुंचा, तो बैंक का ये हो सकता है, आपका रेजर पे का मेल आया रहेगा आपको, तो उसका ट्रैकिंग आईडी लेके आप वो वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं क्या स्टेटस है, वहां पे लिखा रहता है कि सक्सेसफुली डिपॉजिट, कहाँ हमें हमें अगर रहेगा डिपॉजिट किया हुआ तो वैसे लिख के आता है, और अगर उनका कुछ रिफंड का ये रहेगा तो वो डेट भी वहां पे लिख के आता है कि वो डेट तक आपको रिफंड हो जाएगा। हमारे पास तुरंत आ जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको तो रिसिप्ट भी आप ऐप के ऊपर ही मिल जाती है, चैट बॉक्स में तुरंत रिसिप्ट आ जाती है आपको। ऐसे सर कुछ वो हो मैम सकता है, ने महीने में रिप्लाई एक दो बार, एक आध दो केस ऐसे हो जाती है जो पेमेंट ये हो जाता है। ठीक है, मैं पूजा मैम से बात कर लेता हूँ। वो आप आईडी पूजा मैडम से भी बात करने की जरूरत नहीं है, आप वो आईडी है ना, ट्रैकिंग आईडी लेके आप इसके ऊपर चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, किसको कुछ और क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी मैंने एक्चुअली यहाँ पे पोस्ट कर दिया है आपके लिए, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस पर्सन है 2-3 साल का? हेलो, ठीक है, तो फिर हम रुक जाते हैं। थैंक यू एवरीवन, ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द, ताकि आपको पूरा ये एक्सपीरियंस है आप ये ले पाए। थैंक यू।